وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا معاملہ، حکومت اتحاد اور پی ڈی ایم رہنماؤں کا سپریم کورٹ میں فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ بار کی نظر ثانی درخواست، متعلقہ درخواستوں کی ایک ساتھ سماعت کرنے کی استدعا کی جائے گی۔ تمام جماعتوں کے رہنما کل صبح 10:30 بجے مشترکہ پریس کانفرنس میں اہم اعلان کریں گے۔ ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ آئینی اور قانونی ہے۔ ارکان اسمبلی پارٹی قائد کی ہدایات کے مطابق ووٹ دینے کے پابند ہیں۔ 22 کروڑ عوام کے ووٹ کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے۔ معاشرے کا ہر طبقہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق فل کورٹ کا مطالبہ کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی اداروں کو دباؤ میں لانے کے لیے سوشل میڈیا پر مہم چلا رہی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور عطا اللہ تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے موجودہ اور 5 سابق صدور کا چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے نظر ثانی درخواست فل کورٹ بھجوانے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب اور آرٹیکل 63A کی تشریح کی سپریم کورٹ بار کی نظر ثانی کی درخواست فل کورٹ سنیں۔ موجودہ ملکی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اہم ترین آئینی مقدمات کا فیصلہ تمام فریقین کو سن کر ایک ساتھ کیا جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل کی ملاقات۔ عالمی سطح پر تیل و خوراک کی بڑھتی قیمتوں سے متعلق درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا تنظیم کے فریم ورک کے تحت تجارت اور معاشی تعاون کے فروغ پر زور۔ رکن ممالک کے درمیان تجارت اور ترقیاتی اقدامات کے فروغ کے لیے مناسب فنڈنگ کی ضرورت ہے۔ پنجاب کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر محمد بلیغ الرحمان نے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں اعلیٰ حکام اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی شرکت۔ کل سپریم کورٹ میں فل کورٹ کی تشکیل کا باضابطہ مطالبہ کریں گے۔ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے فل کورٹ بینچ کی تشکیل ضروری ہے۔ عمران خان بیرونی طاقتوں کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس کی وجہ سے الیکشن کمیشن پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی نیوز کانفرنس۔ گالیاں اور دھمکیاں دینے والا اداروں کا ٹھیکیدار نہ بنے، کسی کو آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے۔ عمران خان احتساب سے بچنا اور چور دروازے سے اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کا فیصلہ جلد سنائے۔ اہم قومی سیاسی اور آئینی معاملات پر نہ صرف انصاف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ مسلم لیگ قاف کے ارکان نے پارٹی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ ڈالا۔ مینڈیٹ قیادت کا ہوتا ہے، پارلیمانی پارٹی کا نہیں۔ آئین میں ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کی کوئی گنجائش نہیں۔ حکمران اتحاد کا مطالبہ ہے کہ اس معاملے پر فل کورٹ بنایا جائے۔ مشیر امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان قائرہ کی نیوز کانفرنس۔ عمران خان اداروں کے خلاف مسلسل مذموم مہم چلا رہے ہیں۔ فل کورٹ کے مطالبے پر کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر عمران خان کا خط اہم ہے تو چودھری شجاعت کا خط بھی اہمیت کا حامل ہے۔ مسلم لیگ نون عدالتوں کا احترام کرتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ ملکی ترقی اور استحکام کو ترجیح دی ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری۔ قابض بھارتی فوج نے نہتے کشمیریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں روز کا معمول۔ ضلع کلگام میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیاں۔ علاقے کے داخلی اور خارجی راستے بند۔ خواتین اور بچے خوف کا شکار۔ شدید بارشیں اور سیلابی صورتحال۔ وزیر اعظم کی این ڈی ایم اے کو صوبائی حکومتوں اور اداروں کی بھرپور معاونت کرنے کی ہدایت۔ نشیبی علاقوں کے عوام کے جان و مال کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ منتخب نمائندے ریسکیو اور ریلیف کاموں کی نگرانی کریں۔ مشکل صورتحال میں سندھ حکومت کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہے ہیں۔ محمد شہباز شریف۔ مونسون کا تیسرا سپیل۔ کراچی سمیت سندھ کے بیشتر شہروں میں بارشیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ نکاسی آب کے عمل کا جائزہ لیا۔ ریسکیو اداروں اور انتظامیہ کو عوام کی ہر ممکن مدد کی ہدایت۔ ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ 26 جولائی تک جاری رہنے کا امکان۔ اربن فلڈنگ کا خدشہ برقرار۔ کشمیر، گلیات، مری، ایبٹ آباد، مانسہرہ، چلاس، دیامر، گلگت، ہنزا، استور اور اسکردو میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ منکی پاکس 75 سے زیادہ ملکوں میں پھیل گیا۔ عالمی ادارہ صحت نے عالمی ایمرجنسی قرار دے دیا۔ مئی سے اب تک 16,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔
भारत में पहला केस सामने आ गया। मुल्क के दाखिली रास्तों पर मंकी पॉक्स की सख्त निगरानी। अफ्रीका से आने वाले मुसाफिरों के लिए स्क्रीनिंग के निजाम को मजीद मजबूत बना दिया गया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। विफाक और सूबे मिलकर वबा की मौसर रोकथाम के लिए इक़दाम करें। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों की तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चले, हुकूमत, इसके इत्तेहादी और PDM में शामिल जमातों ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले में फुल कोर्ट बेंच के लिए कल सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। हुकूमती इत्तेहादी और PDM की जमातों के रहनुमा कल सुबह 10:30 बजे मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलान करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने वकला के हमरा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब, सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी दरख्वास्त और मुतल्लिका दरख्वास्तों की एक साथ समाअत करने की इस्तदा की जाएगी। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फेस सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। MKM, ANP, BNP, बलूचिस्तान अवामी पार्टी समेत दूसरी इत्तेहादी जमातें भी दरख्वास्त गुजारों में शामिल हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग आईनी और कानूनी है। अरकान असेंबली पार्टी कायद की हिदायत के मुताबिक वोट देने के पाबंद हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 22 करोड़ अवाम के वोट का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। तफसील ताहिर जाफरी से। मॉडल टाउन लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि हमजा शहबाज अक्सरियती वोट लेकर वजीर आला मुंतखब हुए। अवाम के वोट का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। 10 जो वोट थे एक जमात के मुस्लिम लीग काफ के, उनके सरबराह की तरफ से स्पीकर को इत्तला दी गई तहरीरी कि प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी, हेड ऑफ पार्टी ने 63A के तहत हदायत जारी की है कि वो वोट्स जो हैं वो हमजा शहबाज साहब को कास्ट किए जाएँ। परवेज़ इलाही साहब के 186 की बजाय 176 वोट बने और हमजा शहबाज साहब 179 वोट लेकर कामयाब करार दिए गए। रात एक दफ़ा फिर 1:45 बजे सुप्रीम कोर्ट को खोला गया और इस दफ़ा थोड़ा सा अजीब हुआ कि अदालती अमला तो आ गया, रजिस्ट्री का अमला, लेकिन दरख्वास्त अभी तैयार नहीं थी। फिर इंतज़ार किया गया। इस अरसे में एक सियासी जमात के कारकुनान ने दीवारें फैलान के भी सुप्रीम कोर्ट की अदालत में दाखिला लिया बज़ोर बाजू। वफाकी वजीर कानून ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी दरख्वास्त अदालत उज़्मा में मौजूद है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इज्जत और वकार में इजाफा हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर अदालती फैसले के गहरे असरात मुरतब होंगे। क्या ये मुनासिब हो कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो वोट डाले जाने पे और ना गिने जाने पे तशरीही हुक्म को रिव्यू में चैलेंज किया, यानी उस पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर रखी है, उसको और मौजूदा जो मुकदमा है जिसमें ये वोट सही तौर पे शुमार हुए हैं या नहीं हुए उसको, और जो आर्टिकल 63A की तशरीह का मुकदमा है जिससे ये सारे मामलात हल होते हैं, तो ये मुतालबा किया गया कि इसके लिए फुल कोर्ट ये मुकदमा सुने और इन्हें यकजा करके सुना जाए ताकि मुल्क को इस आइनी बहरान से वंस एंड फॉर ऑल निकाल दिया जाए। 12 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को अगर अदालती फ़ैसले के ज़रिए से घर भेजना है तो मैं ये ज़रूर समझूंगा कि जो ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस का ये तकाज़ा है कि अदालत इस दरख्वास्त को संजीदगी के साथ सुने और ये करीने इंसाफ होगा कि अगर इसको तमाम जो अदालत के जज साहिबान हैं फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। जो कोलिशन गवर्नमेंट है, हम इदारों की इज़्ज़त और तकरीम को बहुत मोतबर और मौकर जानते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने कंडक्ट से ये साबित करते आए और करते रहेंगे। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पार्टी सरबराह को लामहदूद इख्तियारात हासिल हैं। चौधरी शुजात ने अपने अरकान असेंबली को हिदायत दी कि हमजा शहबाज को वोट दें। उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग आईनी और कानूनी है। अता तारड़ ने कहा कि मुआशरे का हर तबका फुल कोर्ट बेंच की तश्कील का मुतालबा कर रहा है। पिछली दफ़ा परवेज़ इलाही साहब ने 0 वोट्स लिए थे हमारे 197 के मुकाबले में, तो क्या उस वक्त पार्टी डायरेक्शन मौजूद नहीं थी कि आप परवेज़ इलाही साहब को वोट दें? और क्या वोट ना देने वाले अरकान उन्होंने इनहराफ नहीं किया? फुल कोर्ट का मुतालबा अब सिविल सोसाइटी भी कर रही है, वकला भी कर रहे हैं, हर तरफ से ये मुतालबा आ रहा है। तो अगर
یہ مطالبہ ہر طرف سے آ رہا ہے, پی ڈی ایم نے بھی اس کا اعلان کیا ہے, تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے کہ ایک فل کورٹ جو ہے وہ اس معاملے پر بٹھایا جائے اور اس کا فیصلہ کر لیا جائے. عطا طاہر نے کہا کہ پی ٹی آئی اداروں کو دباؤ میں لانے کے لیے سوشل میڈیا پر مہم چلا رہی ہے. طاہر جعفری, کسان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 5 سابق صدور نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال سے مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی نظر ثانی کی درخواست کو فل کورٹ میں بھجوایا جائے. موجودہ ملکی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اہم ترین آئینی مقدمات کا تمام فریقین کو سن کر ایک ساتھ فیصلہ کیا جائے. سابق صدور نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب اور آرٹیکل 63A کی تشریح کی سپریم کورٹ بار کی نظر ثانی کی درخواست فل کورٹ سنے. یہ مطالبہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدور عبداللطیف آفریدی, محمد یاسین آزاد, فضل حق عباسی, کامران مرتضیٰ اور سید قلب حسن نے مشترکہ طور پر کیا ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر محمد احسن بھون نے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق 17 مئی کے عدالتی فیصلے پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی نظر ثانی درخواست فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے پر زور دیا ہے. احسن بھون نے جاری تنازع ختم کرنے اور آئین اور جمہوری نظام پر عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے نظر ثانی درخواست پر سماعت کے بعد فیصلے کو انتہائی اہم قرار دیا. سپریم کورٹ کو لکھے گئے خط میں احسن بھون نے کہا کہ یہ صحیح موقع ہے کہ سپریم کورٹ معاملے پر فیصلہ دے کر اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے تاکہ اعلیٰ عدلیہ پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس کا فیصلہ متفقہ نہیں تھا. 3-2 کی اکثریت سے آنے والے فیصلے کا مطلب ہے کہ معاملہ کافی اہم اور پیچیدہ ہے, اس لیے نظر ثانی درخواست کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے امید ظاہر کی ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے تمام رکن ممالک امن کے قیام, عالمی یکجہتی اور تعاون کو بڑھانے کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے. ممالک کے درمیان تجارت اور ترقیاتی اقدامات کو فروغ دینے کے لیے مناسب فنڈنگ کے لائحہ عمل کی ضرورت ہے. لاہور میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل یانگ منگ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ایس سی او کا بنیادی مقصد رکن ممالک کی ترقی اور خوشحالی ہونا چاہیے تاکہ ایس سی او رہنما اپنے عوام کے بہتر معیار زندگی کے حوالے سے ان کی خواہشات اور جذبات کا جواب دے سکیں. وزیر اعظم نے سیکرٹری جنرل کو ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے یقین دلایا کہ پاکستان تنظیم کے مقاصد کی تکمیل کے لیے مکمل تعاون کرے گا. وزیر اعظم نے ایس سی او چارٹر اور شنگھائی اسپرٹ کے اصولوں کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ بھی کیا. انہوں نے ایندھن اور اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافہ, غذائی عدم تحفظ اور تنظیم کے رکن ممالک سمیت دیگر ملکوں کے لیے معاشی اور مالی مشکلات اور درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالی. وزیر اعظم نے پاکستان کی ترجیحات اور قومی ترقی کے اہداف سمیت ایس سی او کے تجارت, معیشت, توانائی, سیکیورٹی, موسمیاتی تبدیلی, زراعت, خوراک کے تحفظ, نقل و حمل, غربت کا خاتمہ, آئی ٹی, ڈیجیٹلائزیشن اور ثقافتی اور عوامی روابط سمیت دیگر دلچسپی کے اہم شعبوں پر بھی گفتگو کی. سیکرٹری جنرل نے شنگھائی تعاون تنظیم کے کام اور سرگرمیوں میں پاکستان کی تعمیری شراکت کی تعریف کی اور مستقبل میں تنظیم کی ترجیحات اور کوششوں کے حوالے سے رہنمائی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے رواں سال ستمبر میں سمرقند میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں وزیر اعظم کو شرکت کی دعوت بھی دی. سیکرٹری جنرل نے 4 روزہ دورے سے تنظیم اور پاکستان کی شراکت داری سے متعلق اعلیٰ سطح پر مشاورت کرنے کا موقع ملا. پنجاب کی 33 رکنی کابینہ کے ارکان نے حلف اٹھا لیا ہے. گورنر ہاؤس لاہور میں ہونے والی سادہ اور پروقار تقریب میں پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے صوبائی کابینہ میں شامل ہونے والے وزراء سے حلف لیا. حلف اٹھانے والوں میں سردار اویس احمد خان لغاری, ملک محمد احمد خان, خواجہ سلمان رفیق, رانا محمد اقبال, عطا اللہ تارڑ, مہر اعجاز احمد, صدیق خان بلوچ, کاظم علی پیر سادہ, چودھری شفیق, ملک ندیم کامران, میاں یاور زمان, کرنل ریٹائرڈ یعقوب, چودھری اقبال گجر, منشاء اللہ بٹ, تنویر اسلام سیٹھی, جہانگیر خان سادہ, رانا مشہود احمد خان, مشتبہ شجاع الرحمان, خواجہ عمران نذیر, بلال یاسین, ملک سیف الملوک کھوکھر, فدا حسین وٹو, رانا اعجاز نون, عظمی زاہد بخاری, خلیل طاہر سندھو, غلام قاسم ہنجرا, دانا محمد طارق, ظہیر اقبال چنر, ذیشان رفیق, ثانیہ عاشق, سید حسن مرتضیٰ, سید علی حیدر گیلانی, بلال اصغر وڑائچ, قاسم عباس لنگا, ملک اسد کھوکر, احمد علی اولکھ, معاویہ اعظم اور سبطین بخاری شامل ہیں. حلف اٹھانے والے وزراء کے قلمدان کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. حلف برداری کی تقریب میں وزراء کے اہل خانہ, اعلیٰ سول حکام اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی.
सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इमरान खान बैरूनी ताकतों के एजेंडे पर काम कर रहा है। इमरान खान के पास कोई सियासी नजरिया नहीं है। इनकी सारी सियासत झूठे बयाने पर मबनी है। इमरान खान ममनुआ फंडिंग केस की वजह से इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए फुल कोर्ट बेंच की तश्कील ज़रूरी है। कल सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट की तश्कील का बाज़ाब्ता मुतालबा करेंगे। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये केस जो इस वक्त 3 रुकनी बेंच के ज़ेर समाअत है, ये सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट सुने। तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के, ये हमारा मुत्तफ़क़ा मुतालबा है, पूरे हुकूमती इत्तेहाद का मुतालबा है। और सिर्फ 3 हज़रात पर बहस हो रही है। ऐसे फैसले फिर आम माहौल में लोगों का जहन कबूल नहीं करता। हम समझते हैं कि अदालत का वक़ार बहाल रहे और उनके फैसलों को हर शख्स दिलो जान से कबूल करे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इदारों को गाली और धमकी देने वाला अब उन इदारों का ठेकेदार न बने। इमरान खान को इक़्तिदार में वापसी के लिए एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट का खेल नहीं खेलने देंगे। फवाद चौधरी के बयान पर रद्दअमल देते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान ने खुद एतराफ़ किया कि 4 साल हुकूमत चलाने के लिए इदारों और एजेंसियों की मदद ली। उन्होंने मज़ीद कहा कि धौंस, धमकी और गाली से इंसाफ का कत्ल नहीं करने देंगे। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का बयानिया आइन का बयानिया है और रहेगा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान का निशाना इदारे हैं और उनकी क़यादत को ओहदों से उतरवाना है। मुंह पर खून लगने की बात करके अब पाँव न पकड़ें। फौज और अदलिया को सियासत में घसीटना बंद किया जाए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग का फैसला जल्द सुनाए। इमरान साहब धौंस, धमकी, इंतशार, फसाद और गुंडागर्दी के जरिए फॉरेन फंडिंग केस में NRO चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक मुकदमे की समाअत फुल कोर्ट करे। फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बार की नसरसानी दरख्वास्त, मौजूदा दरख्वास्त और दीगर मुतल्लिका दरख्वास्तों की एक साथ समाअत की जाए। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अहम कौमी, सियासी और आइनी मामलात पर न सिर्फ इंसाफ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान की माशी तबाही की कीमत अवाम, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में अदा कर रहे हैं। इमरान खान एहतसाब से बचना, अपनी करप्शन छुपाना और चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये जंग मुतकब्बिर आइन शिकन इमरान खान की फस्तायत के खिलाफ है। पाकिस्तान के अवाम और इदारों को उनकी ख्वाहिशात का गुलाम नहीं बनने देंगे। इमरानी सोच और रवैया पाकिस्तान के रियासती निज़ाम के लिए दीमक बन चुका है। आइन, जमहूरियत और अवाम के हक हुक्मरानी पर समझौता नहीं करेंगे। उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुशीर कमर जमान कायरा ने कहा है कि मुस्लिम लीग क़ाफ के अरकान ने पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ वोट डाला। मैंडेट क़यादत का होता है, पार्लिमानी पार्टी का नहीं। नाला मूसा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आइन में ट्रस्टी वज़ीर आला की कोई गुंजाइश नहीं। तफसीर बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुशीर कमर जमान कायरा ने कहा कि पंजाब में अदालत के फैसले की बुनियाद पर काफ लीग के वोट मुस्तरद हुए। पार्लिमानी पार्टी इलेक्शन के बाद की पैदावार होती है। उन्होंने कहा कि अदलिया हम सब के लिए काबिल एहतराम है। इत्तेहादी हुकूमत को कुछ जजों के कमेंट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फुल कोर्ट बनाने पर अदालत को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। देती है, पार्टी का एक लीडर होता है जो कौम के पास जाता है, उस मैनिफेस्टो को लेके जाता है और कैंपेन करता है पूरे मुल्क में या पूरे सूबे में और अपने लोगों को वो कामयाब कराता है। उस टिकट पे, उस असूल पे, उस मंशूर पे, उस लीडर के तहत जो लोग कामयाब हो जाते हैं उनको इस बुनियाद पे अदालत ने कहा कि ये जिस लीडर के तहत, जिस असूल, जिस ज़ाब्ते, जिस कानून के तहत कामयाब हो के आए, जिस सिंबल के निशान के तहत कामयाब हुए, उनको अपने मेजर फैसले करते हुए उसकी पाबंदी करनी है। कमर जमान कायरा ने कहा कि पार्लिमान और सियासतदानों का एहतराम भी बाकी इदारों की तरह होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात की वजह से मुल्क को सियासी और माशी मसाइल का सामना है। मुल्क इस वक्त सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे बेशुमार मसाइल का सामना कर रहा है और ये जो आप लोगों को इस पे इश्ताल दिला रहे हैं कि ये इनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, ये बाज़ारों में नहीं निकल सकेंगे, ये जो तशद्दुद की लहर आप पैदा करना चाहते हैं, ये फाशिज़म का ख़ास हथियार है। खुदारा इससे बचिए, इस मुल्क को महफूज रखिए। ये हमारी और हमारे इदारों की जिम्मेदारी है, सियासतदानों की जिम्मेदारी है। अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुशीर ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। अमीरों पर टैक्स बढ़ाए गए जबकि गरीब और कमज़ोर तबके को सब्सिडी दे रहे हैं। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।
वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि बहुत हो चुका, अब मजीद साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पीडीएम और इत्तेहादी जमातों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब किसी किस्म की मुदाखलत और साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस का 8 साल से फैसला नहीं हुआ, इसमें ताखीर की वजह समझ से बालातर है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमने हमेशा पाकिस्तान के इस्तेहकाम को तरजीह दी है। इमरान खान इदारों के खिलाफ मुसलसल मज़मूम मुहिम चला रहे हैं। आपकी जुबान चलती है, आप बदतमीज हैं, आप गाली देते हैं, इसलिए आपको कोई कुछ नहीं कहता। आपके घर का जाली नक्शा हो, आपके पास आपकी फॉरेन फंडिंग हो, आपके बीआरटी के स्टे हो, आपके सुनामी के स्कैंडल्स हो, आपके उसके बाद मुझे ये बता दें खान साहब कि आपसे ये लाडलों वाला सलूक क्यों किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर तख़फ़ीफ़ गुरबत शाज़िया मरी ने कहा है कि इमरान खान इंतशार की सियासत करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बदतहज़ीबी का फ़रोग़ उनका वतीरा है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान खान को लाडला बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। रिपोर्ट करेंगे हसन नासिर सिद्दीकी। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के हमरा कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान इंतशार की सियासत करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बदतहज़ीबी का फ़रोग़ इनका वतीरा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को लाडला बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। शाज़िया मरी का कहना था कि चौधरी शुजात हुसैन ने बतौर पार्टी सरबराह अपना हक इस्तेमाल किया। वज़ीर आला पंजाब के मामले पर लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। इमरान खान जो है उसने गलत सबक पढ़ा है। उसको लगता है कि सियासत इस तरह से कामयाब होती है, लेकिन सियासत इस तरह से कामयाब नहीं होती। जमातें ज़ाहिर बात है जब देख रही हैं कि इस तरफ जा रहा है ये शख्स और गालियों पे गालियां दे रहा है, तो यकीनन हमें अपने रिएक्शन का इजहार तो करना है, लेकिन हम अब भी इस मुल्क के इदारे, इस मुल्क के अमन, इस मुल्क के इस्तेकाम से नहीं खेलना चाहते। हम अब भी चाहते हैं कि इदारे जो फैसले हैं वो अपने मेरिट पर दें। इस इमरान खान की गाली, इसकी धमकी की रोशनी में कोई फैसला नहीं आना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नजरिया ज़रूरत अब दफन हो चुका, हर किसी पे कानून का यकसा इतलाक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आइन में पार्टी के सरबराह के इख्तियारात वाज़ेह हैं। इमरान खान अपनी पसंद के फैसलों पर वाह वाह, जबकि फैसला खिलाफ आने पर हंगामा करता है। अगर आज आप कहते हैं कि चौधरी शुजात साहब की हिदायत गलत है, गैर कानूनी है और वो हिदायत जारी नहीं कर सकते थे, तो फिर एक और कट्ठा खुल जाएगा कि वो जो 20 MPs को आपने डी सीट किया था, फिर वो फैसला गलत था। फिर तो ये जो नया इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन, ये मुतनाज़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आइन और कानून से कोई बालातर नहीं और मजीद इस मामले पर सियासत करने के बजाय अदलिया का लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। तहरीक आज़ादी से यौम आज़ादी तक का सफ़र क़याम पाकिस्तान की डायमंड जुबली भरपूर मिली जोशो जज्बे और यकजहती के साथ मनाई जा रही है। तहरीक आज़ादी में कायद आज़म के 14 नकात और अल्लामा इकबाल का 2 कौमी नज़रिया बहुत अहमियत के हामिल है। देखिए वक़ार हैदर की रिपोर्ट। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ही वो वाहिद इदारा था जहां से मुसलमानान हिंद ने आज़ादी की जद्दोजहद जदीद बुनियादों पर शुरू की। कायदे आज़म इसी मिली यकजहती को देखते हुए कांग्रेस को खैरबाद कहकर मुस्लिम लीग में शामिल हुए। 2 कौमी नजरिए का जरम हुआ। कायदे आज़म ने 1929 में मुतालबात के 14 नकात पेश कर दिए, जिसे कांग्रेस ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास इलाहाबाद में हुआ। हजरत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने खिताब में हिंदुओं के मुसलमानों पर जुल्म सितम बयान किए और इससे निजात का वाहिद हल मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क का मुतालबा बताया। चौधरी रहमत अली ने 1933 में एक पंफलेट शाया किया। उन्होंने वादी सिंध के इलाकों और दीगर हिंदुस्तानी मुसलमान अक्सरियती इलाकों को पाकिस्तान का नाम दिया। 1937 के इंतखाबात में जहाँ जहाँ कांग्रेस की हुकूमत बनी वहाँ मुसलमानों के हकूक को पामाल किया गया। जायदादों पर गासबाना कब्जे कर लिए गए और मुसलमानों को दर्जे दोम का शहरी बनाने के हालात पैदा किए गए। इन हालात की वजह से 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का तारीख साथ जलसा लाहौर में हुआ। जलसा के आखिरी सेशन में तारीखी करारदाद पाकिस्तान पास की गई। जलसा गाह में जिस जगह पर स्टेज लगाया गया था, ये वही जगह है जहां मीनार पाकिस्तान पूरी शान से खड़ा है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों ने जिला कुलगाम के इलाके रामपुरा कैम्पवा में महासे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाई की। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने इलाके के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया और घर घर तलाशी की कार्रवाई शुरू कर दी। काबिज हुक्काम ने इलाके में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी। आखिरी इतलात आने तक इलाके में फौजी ऑपरेशन जारी था। कुल जमात यूनियन कॉन्फ्रेंस के नजरबंद वाइस चेयरमैन शब्बीर अहमद शाह ने तिहाड़ जेल से एक बयान में आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों की खूनरेजी बंद करवाने में अपना किरदार अदा करे। शब्बीर अहमद शाह ने कहा कि भारतीय फौजी कश्मीरी नौजवानों को बगैर किसी वजह के कत्ल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को टारगेट किलिंग खित्ते में आबादी का तनासुब तब्दील करने के भारत के मज़मूम मंसूबे का हिस्सा है। नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में नजरबंद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक की भूख हड़ताल आज तीसरे रोज में दाखिल हो गई। मोहम्मद यासीन मलिक ने अदालती समातों के दौरान मुनसिफाना ट्रायल और अदालती कार्रवाई में जारी तौर पर पेश होने जैसे कानूनी हुकूक के हुसूल के लिए तादम मर्ग भूख हड़ताल का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा हर्षदेव सिंह ने जम्मू में एक बयान में जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की फौरी बहाली का मुतालबा दोहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर से बाहर के ब्यूरोक्रेट्स मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुंतखब नुमाइंदों का मुतबादिल नहीं हो सकते। आर्ट न्यूज़ फैक्ट चेकिंग पोर्टल के शरीक बानी मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा है कि मोदी हुकूमत इख्तिलाफ राय की हर आवाज़ को खामोश कराना चाहती है। 23 दिन जेल में गुजारने के बाद मोहम्मद ज़ुबैर ने नई दिल्ली में एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि उन्हें दर हकीकत दूसरों के लिए इबरत बनाया गया है। और अब नजर डालेंगे मौसम की बदलती हुई सूरत हाल पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कराची समेत मुल्क के दूसरे इलाकों में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र सूबाई हुकूमतों और मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि NDMA सूबाई हुकूमतों और इदारों को भरपूर मुआवनत फराहम करे। वज़ीर आज़म ने यह भी हिदायत की कि नशेबी इलाकों के अवाम की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल सूरत हाल में सिंध हुकूमत को वफाक हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। मुंतखब नुमाइंदे मुतालिका इदारों के रेस्क्यू और रिलीफ के कामों की मौसर निगरानी करें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश से अहम शाहराहें और नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहरियों से अपील की है कि बारिशों में खुद और अपने बच्चों को घरों तक महदूद रखें। इस हवाले से देखते हैं ज़िशान अहमद खान की ये रिपोर्ट। मॉनसून बारिशों का तीसरा स्पेल सिंध भर में जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मॉनसून की मुसलसल जारी बारिश के दौरान सूबाई वुज़रा और शहरी इंतजामिया के हमरा शहर कराची के मुख्तलिफ नशीबी इलाकों, नदी नालों और चौकिंग पॉइंट्स जिनमें नहर क़याम, II चंडीगढ़ रोड, स्टॉक एक्सचेंज, हबीब बैंक प्लाजा, टावर और लियारी का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर तमाम शहरी इदारों का मुतालिका अमला सड़कों पर मौजूद है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस मरतबा शहरियों को तकलीफ नहीं होने देंगे, जबकि आवाम को चाहिए कि वो बारिशों में खुद और अपने बच्चों को घरों तक महदूद रखें। कोई नहीं, ना इख्तियारात का इशू है, ना पैसों का इशू है, इशू है नेक नियति से काम करने का। हमारी कोशिश यही है पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की कि नेक नियति से काम करते हैं। अगर सब मिलकर काम करें तो मसाइल पैदा नहीं होंगे, मसाइल कम होंगे। चले मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन आप एक दूसरे का इंस्टेंट कि आप एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाएं, अगर आप मिल बैठ के काम करें तो लोगों का ही फ़ायदा होगा। मैं यही दुआ करूँगा कि सबसे कि हम देखें क्या पोजीशन बनती है। अभी जब मैं ये रूट राउंड ख़त्म करके मैं अपने मौसमियात से फिर से पूछेंगे, अगर कोई ऐसी ज़रूरत हुई तो शायद इक़दाम उठाना पड़े, इसलिए कि डेफिनेटली जब लोग निकलेंगे तो उनकी मुसीबतें और बढ़ेंगी। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस और जिले इंतजामिया को बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल से आवाम को हर तरह से मदद करने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध ने DHA का भी दौरा किया और एडमिनिस्ट्रेटर कराची को मजीद रीवाटरिंग पंप्स लगाने की हिदायत जारी की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर चेयरमैन NDMA ने हुकूमत सिंध से राब्ता किया और हालिया बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। NDMA ने मजीद रीवाटरिंग पंप्स सिंध हुकूमत के हवाले कर दिए और बवक्त ज़रूरत वफाकी हुकूमत और NDMA की जानिब से सिंध हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई।
कराची समेत सिंध के दूसरे शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। हैदराबाद, ठट्टा, थरपारकर, सांगड़, नवाबशाह, मीरपुर खास, बदीन, मटियारी, टंडोलायार, टंडो मोहम्मद खान, टंडो जाम, शहदादपुर और जामशोरों में गुज़िश्ता शब मूसलाधार बारिश हुई। ज़िले इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ सड़कों, मसरूफ शाहराहों और मार्केट से निकासियाब का अमल जारी है। सबसे ज्यादा बारिश टंडोजाम में 55 मिलीमीटर और हैदराबाद में 40 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद, कराची, मीरपुर खास, थरपारकर, शहीद बेनज़ीराबाद और सक्खर डिवीजन में आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों का इम्कान है। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। यहाँ रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिशों और सैलाबी रैलों से शदीद नुकसान पहुँचा है। अपर कोहिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों के बाद सैलाबी रेले इंफ्रास्ट्रक्चर बहा कर ले गए। तफसील मुदस्सिर खान की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले अपर कोहिस्तान में मानसून बारिशों के बायस अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। PTV को मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक अपर कोहिस्तान की दूर अफ्तादा तहसील कुंदिया में मानसून बारिशों के बायस बरसाती नाले में बड़ा सैलाबी रेला आया जो कई घरों को बहा ले गया। इलाके में लैंड स्लाइडिंग की वजह से भी कई मकानात मलबे तले दब गए हैं। मकामी ज़राए के मुताबिक कुंदिया में सैलाबी रेले से कई राब्ता पुलों, छोटे पन बिजली घरों और आपाशी के निज़ाम को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। तहम किसी किस्म की जानी नुकसान की अभी तक इतला नहीं मिली है। बेरती गांव में दर्जनों मकानात, फसलें और माल मवेशी बारिशों और सैलाब की नज़र हुई है। PD में और ज़िली इंतज़ामिया ने खुराकी अशिया और दीगर ज़रूरी सामान के हमरा इमदादी टीमों को मुतासरा इलाकों की जानिब रवाना कर दिया है। सैलाबी रेलों से राब्ता सड़कों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है जिससे इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात पेश आ रही है। अपर चतराल में भी शदीद बारिश के बायस बरसाती नालों में तुग़यानी आई है। सैलाबी रेले में 5 घर बह गए जबकि 4 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। तात के मुताबिक गरम चश्मा रोड लैंड स्लाइडिंग की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद है। इमदादी कामों के लिए मुतासरा इलाकों में मशीनरी पहुंचाई जा रही है। PDMA के मुताबिक शहराए रेशम को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है जबकि नुकसानात के तखमीना लगाने के लिए मुतासरा इलाकों को टीमें रवाना कर दी गई है। डेरा इस्माइल खान की तहसील परुआ के मुख्तलिफ इलाकों में भी सैलाबी पानी दाखिल हुआ है जिसके बाद इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई है। तहसील परुआ के गांव चांसड़ा में किश्ती के जरिए खवातीन और बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने सूबे में बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतल्लिका हुकाम को मुतासिरीन को फौरी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। मुदस्सिर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। और शहर इक़्तिदार में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला मज़ीद 2 रोज़ तक जारी रहेगा। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद अबनान अपनी इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में वक्फे से होने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है जबकि हवा में नमी का तनासब 84% है। बारिशें 2 रोज तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 2 रोज तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई की है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में भी बारिशों का इम्कान है। बारिशों की वजह से पंजाब और सिंध के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है जिसके बायस NDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की हैं। लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी के खतरे के बायस सयाहों को सफर के दौरान एहतियात की हिदायत भी की जा रही है। मोहम्मद अमनान, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में भी वक्फे से बारिशें हो रही हैं। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने तमाम मुतालिका इदारों फौरी बहाली की सरगर्मियाँ शुरू करने की हिदायत जारी की हैं। तफसील शेर अब्बास से। गिलगित बल्तिस्तान में आज सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से ज़िला गिलगित और ज़िला गिज़र में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर हुई। शहर किला और बारगों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा और सैलाब का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। शाहराह कराकुरम गिज़र रोड गिलगित नल्तर एक्सप्रेसवे पर कई मकामात पर सैलाब की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल हुई और मुतासिरा मकामात की दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ताहम गिलगित बल्तिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका इदारों ने भारी मशीनरी के ज़रिए सड़क से मलबा हटाकर ट्रैफिक को बहाल कर दिया। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने मुतासिरा मकामात पर फौरी रिस्पॉन्स करते हुए मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाब के दौरान मुतल्लिका इदारों को फौरी इमदादी सरगर्मियाँ शुरू करने के अहकाम दिए हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर तमाम मुतल्लिका इदारे मुतासरा सड़कों और बिजली की बहाली के लिए मुतहरिक हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में नागहानी आफात से निमटने के इदारे
اور انتظامیہ نے صوبے میں مزید بارشوں کے پیش نظر سیاحوں اور مسافروں کو خطرات سے دو چار علاقوں میں سفر میں احتیاط کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سید شیر عباس، PTV نیوز، گلگت۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی۔ نوکنڈی 45 اور دالبندین میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مختلف شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اسلام آباد 29، لاہور 35، کراچی 29، پشاور 31، کوئٹہ 28، گلگت 27، مظفر آباد 31، مری 21، دیر 29، چترال 30، راولہ کوٹ 27، مالم جبہ 19، فیصل آباد 34، ملتان 31، سرگودا 34، سری نگر 31، جموں 33، لہ 30، پلوامہ 23، اننت ناگ 22، شوپیاں 20 اور بارہمولہ میں 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کا حال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ بہت شکریہ قاسم۔ اور ناظرین، کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے امریکی صدر جو بائیڈن کی کرونا سے صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ امید کرتا ہوں کہ صدر جو بائیڈن جلد اور مکمل صحت یاب ہوں۔ صدر جو بائیڈن کے معالج ڈاکٹر کیون کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی حالت پہلے سے بہتر ہے اور کرونا علامات میں کمی آ رہی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے سیکرٹری پنجاب بار کونسل اشرف راہی کے قتل پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں صدر مملکت نے مرحوم کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کی اور سوگواران سے افسوس کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر کے اہل خانہ کو انصاف فراہم کیا جائے گا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ صنفی مساوات میں پاکستان کا نمبر بہت نیچے ہے۔ کاروباری گھرانے اپنے بیٹوں کو آگے لے کر آتے ہیں لیکن گھر کی خواتین نمایاں نظر نہیں آتی۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ اداروں میں خواتین کو محفوظ ماحول مل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تجارت کے پیشے سے وابستہ تھیں۔ عورت کو معاشرے میں اس کا جائز مقام نہ دینا اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈرس نے کہا ہے کہ منکی پاکس بیماری کا تیزی سے پھیلاؤ ہنگامی صورتحال کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ منکی پاکس کا 75 ملکوں میں پھیلنا ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ بیماری سے 16,800 سے زائد مریض سامنے آ چکے ہیں، اس لیے اس وبا کو عالمی ایمرجنسی قرار دینا ناگزیر ہو گیا ہے۔ منکی پاکس کی صورتحال کے حوالے سے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے WHO کا لیبل تیار کیا گیا ہے تاکہ ویکسین اور علاج کے اشتراک کے لیے فنڈنگ اور عالمی کوششوں کی راہ ہموار ہو سکے۔ عالمی ادارے صحت کی جانب سے منکی پاکس کے پھیلاؤ کو عالمی ایمرجنسی کا درجہ دینے کے بعد وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی ہدایت پر بارڈر ہیلتھ سروسز نے ملک کے داخلی راستوں پر صحت کے حوالے سے سخت نگرانی شروع کر دی ہے۔ وزیر صحت نے NCOC کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ کورونا وبا کے ساتھ منکی پاکس کی بھی مانیٹرنگ کو یقینی بنایا جائے۔ وبا کی روک تھام کے لیے وفاق اور صوبے مل کر اقدامات کریں۔ افریقہ سے آنے والے مسافروں کی اسکریننگ کا نظام مضبوط بنایا گیا ہے، تاہم ابھی تک پاکستان میں منکی پاکس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید 3 افراد انتقال کر گئے۔ مہلک وائرس کے 532 نئے کیسز بھی سامنے آئے۔ تفصیل ملک عمر سے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے 532 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 19,402 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 2.74% ریکارڈ کی گئی ہے۔ NCOC کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ اب کے پھیلنے والی وائرس کی قسم نئی ہے اور اس کے خلاف کسی میں بھی قوت مدافعت نہیں ہے۔ وبا سے بچاؤ کا بہترین حل احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اور بوسٹر ڈوز لگوانا ہے۔ وزارت صحت اور NCOC نے شہریوں کے لیے ضروری ہدایات دی ہیں، جن کے مطابق شہری سماجی فاصلہ یقینی بنائیں، ماسک کا استعمال ضرور کریں، SOPs کا خاص خیال رکھیں، بزرگ، بچے اور بیمار خصوصاً احتیاط کریں۔ عالمی ادارہ صحت کے اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق وائرس سے 56 کروڑ 52 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ اموات کی مجموعی تعداد 63 لاکھ 73 ہزار سے تجاوز کر گئی ہے۔ WHO کے مطابق وائرس کی نئی قسم پہلے سے زیادہ تیزی سے پھیلاؤ کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عالمی سطح پر ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق کورونا وائرس کے 86% حالیہ کیسز میں وائرس کی نئی قسم ہی پائی گئی ہے۔ متعلقہ اداروں کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ وبا سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بار پھر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں اور ویکسین کی بوسٹر ڈوز بر وقت لگوائی جائے۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान आलमी सतह पर कोरोना केसेस में कमी आई है। 2 लाख कमी के बाद मजीद 7,11,300 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। वबा से मजीद 1,068 अफराद जान की बाजी भी हार गए। जापान में कोरोना की लहर मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। आदार-ओ-शुमार के मुताबिक जापान में 1,96,000 से ज्यादा नए मरीजों की तस्दीक हुई है। इटली, फ्रांस और शिमाली कोरिया में 68,000 जबकि ऑस्ट्रेलिया में 45,000 से ज्यादा मरीजों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। वफाकी वज़ीर मवासलात और पोस्टल सर्विसेज असद महमूद ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर हकला टोल प्लाजा पर महसूलात की वसूली के लिए कायम बूथ की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। हकला टोल प्लाजा के दौरे के मौके पर उन्होंने कहा कि NHA, FWO और मोटरवे पुलिस हुक्काम ने 2 दिन के अंदर इजाफी टोल बूथ कायम किए हैं, जिस पर तमाम मुतल्लिका हुक्काम खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स सिस्टम फाल होते ही मुल्क भर में तमाम मोटरवेज पर ट्रैफिक बिला रुकावट रवां दवा रहेगी। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा है कि लकी मरवत के इलाके बेटनी में दरियाफ्त होने वाले तेल और गैस के ज़खायर से इलाके को पूरी रॉयल्टी मिलेगी। लकी मरवत के इलाके तजोड़ी में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमत ने सब डिवीजन बेटनी के इलाके में दरियाफ्त होने वाले तेल और गैस के ज़खायर की रॉयल्टी और दीगर मराहल से ज़िला लकी मरवत को महरूम करने की कोशिश की। मौजूदा हुकूमत ने इलाके को गैस की फराहमी और रॉयल्टी देते हुए साबिका हुकूमत के गलत फैसले को ख़त्म कर दिया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इलाके में बिजली के मसाइल पर काबू पाने के लिए नया ग्रिड स्टेशन मंजूर कराएंगे। वाशिंगटन में पाकिस्तान अमेरिका 2 रोज़ा हेल्थ डायलॉग कल से शुरू होंगे। डायलॉग में शिरकत के लिए वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की सरबराही में 4 रुकनी वफ़द वाशिंगटन पहुंच गया। तर्जुमान वज़ारत सेहत का कहना है कि शूबा सेहत में 2 तरफ़ा ताउन के जामे एजेंडे पर बात होगी। अमरीकी इदारे सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल और NIH के दरमियान ताउन पर बात होगी। डायलॉग के मुख्तलिफ सेशन में वज़ारत सेहत के हुक्काम माहिरीन पाकिस्तान से वर्चुअल शिरकत करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि मुहर्रम उल हराम और माह सफ़र के हवाले से 18 निकाती ज़ाब्ता इखलाक तैयार किया गया है, जिस पर तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा मुत्तफ़िक़ हैं। लाहौर में उलमा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान मजालिस और जुलूसों की आज़ादी होनी चाहिए। तमाम उलमा कराम अख़ुव्वत और भाईचारे के लिए किरदार अदा करें। जब सियासी इस्तेहकाम होगा तो यहाँ पर मुआशी इस्तेहकाम भी होगा। आप जो सूरत हाल मुआशी है वो भी तब बेहतर होगी जब सियासी इस्तेहकाम होगा। तो हमने जिस तरह पैगाम पाकिस्तान किया है, हम कहते हैं कि मुल्क के तमाम सियासतदान एक मिसाके पाकिस्तान करें। 25 साल के लिए कम से कम आप एक पॉलिसी बनाएं, दाखिला खारजा मुआशी पॉलिसी। और जिसकी तरफ आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में कहा था, तो ये तो गैर सियासी चीज़ है कि अगर ये मिसाके पाकिस्तान करके मुल्क के लिए करते हैं तो हम तो इनके तायीद कुनंदा होंगे, तस्दीक कुनंदा होंगे सब। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नौमुंतखब सदर और दीगर ओहदेदारों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफजल बट का PFUJ का सदर और अरशद अंसारी का सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होना सहाफ़ी बरादरी के उन पर एतमाद का मज़हर है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि नौमुंतखब ओहदेदार मीडिया और सहाफ़ी बरादरी को दरपेश मसाइल के हल में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मीडिया और इज़हार राय की आईनी आज़ादियों पर पुख्ता यकीन रखते हैं। मीडिया और सहाफ़ी बरादरी को साजगार पेशावराना माहौल की फ्राहमी और मसाइल के हल में भरपूर मुआवनत फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ के नौमुंतखब सदर और दीगर ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। उन्होंने अफजल बट को PFUJ का सदर और अरशद अंसारी को सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि दीगर नौमुंतखब ओहदेदारों को भी कामयाबी पर मुबारकबाद देते हैं। हुकूमत मीडिया और सहाफ़ी बरादरी को दरपेश मसाइल के हल में भरपूर ताउन करेगी। PFUJ के साथ मिलकर मीडिया और इज़हार राय की आईनी आज़ादियों को फ़रोग़ देंगे। अपना आबाई घर देखने के लिए पाकिस्तान की मेहमान बनने वाली 92 साला भारतीय मोअम्मर खातून रीना वर्मा मलका कोहसार मरी के दिलकश नज़ारों में खो गए। उन्होंने क़याम पाकिस्तान से कबल बचपन और जवानी के दिनों में मरी से जुड़ी हसीन यादों को ताज़ा किया। भारतीय खातून रावलपिंडी के बाद सैर के लिए मरी पहुंची तो मकामी लोगों और सयाहों की बड़ी तादाद ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। लोगों ने मेहमान रीना वर्मा पर फूलों की पत्तियां निछावर की। इस दौरान वो सयाहों में घुल मिल गईं। सयाहों और मकामी लोगों ने उनके साथ सेल्फियां भी बनाई। रीना वर्मा ने भी अपनी यादों को कैमरे की आंख में महफूज किया और खूबसूरत मौसम से लुत्फ उठाया।
इस्लामाबाद में फलों के बादशाह आमों की नुमाइश जारी है। फेस्टिवल में खुश रंग और मीठे रसीले आम तवज्जो का मरकज हैं। तफसील बताएंगे अली गुल। फलों का बादशाह कहलाए जाने वाला आम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपने मुनफरिद जायके की वजह से मशहूर है। मैंगो फेस्टिवल में आमों की मुतअद्दिद इकसाम के स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें अनवर रटोल, सिंधड़ी, चौंसा समेत कई इकसाम के आम नुमाइश के लिए रखे गए। नुमाइश का मकसद आम की पैदावार, वैल्यू एडिशन, सप्लाई वैल्यू चेन में बेहतरी और मकामी आम को बरामद करने के हवाले से अहमियत पर जोर देना था। पाकिस्तान का आम दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है। मैं खुद बाहर के मुल्कों में जब भी जाता हूँ तो बाकी चीज़ों पे तो कंपटीशन करते हैं, लेकिन जब आम की बारी आती है तो वो पाकिस्तान हमेशा नंबर 1 होता है। पाकिस्तान में आम की सालाना पैदावार तकरीबन 17,05,080 टन है, जबकि बरामद 142 मीट्रिक टन है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तानी आम यूरोप, जापान, अमेरिका और कई नए ममालिक में बरामद किया गया, जिससे $145 मिलियन की आमदनी हुई। छठी सालाना नुमाइश में 100 से ज़ायद इकसाम के आम नुमाइश के लिए रखे गए। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में मौसीकी की तकरीब का इनेकाद क्या तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। ये कोई तबले जंग नहीं, बल्कि इंसानी मूड पर खुशगवार और मुस्बत असरात मुरतब करने की मशक है। यहाँ बच्चे और बड़े खूब खुश नजर आए, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ड्रम सर्कल का हिस्सा बनकर तमाम अफराद बच्चों की तरह खुश नजर आए। बड़े लोग आए हैं पार्टिसिपेट करने एंड दे आर एंजॉयिंग सो मच। म्यूजिक इतना खूबसूरत चीज़ है और इतनी अच्छी स्पीड के साथ जो सिंक्रोनाइज नजर आता है मुझे अंदर लोग एक तरह का बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है इन लोगों से। One of the very cool thing about the drum circle is it's just like a circle of happiness and like everyone from different backgrounds, they are sitting together from different ages. एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे होना है और एक दूसरे के साथ यूँ कहिए कि मतलब एक रिदम में कैसे आना। म्यूज़िक एक अलग लैंग्वेज है और एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो सारे लोगों को, हर तरह के लोगों को, हर कल्चर के लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करके उनको जोड़ देती है। बाय प्रोफेशन आई एम अ म्यूजिशियन, सो मैं ये समझता हूँ कि आप दुनिया के किसी भी खिते में हैं और आप जब म्यूजिक के जरिए लोगों को कनेक्ट करते हैं, सो दिस इज द बेस्ट कनेक्टिविटी। ये तमाम लोग एक दूसरे को जानते तो नहीं थे, लेकिन ड्रम एक ही मुताबिकत से बजाते रहे और इंतहाई सादा महफिल में महंगी तफरी का मजा लूटते रहे। ड्रम सर्कल तकरीब ये साबित करती नजर आई कि एक सादा ख्याल खास खुशी का बायस बन सकता है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जिला हुंजा के दूर उफ्तादा इलाका चपोरसन गुजाल में 3 रोज़ा हजरत बाबा गुंदी फेस्टिवल का आगाज हो गया है। फेस्टिवल के हवाले से देखते हैं इकराम नजमी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के सरहदी गांव चुपुरसन गोजाल में मुनक़िद सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा गुंदी के नाम से मंसूफ 3 रोज़ा बाबा गुंदी फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हुआ। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान बैरिस्टर खालिद खुर्शीद, सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्लाह बेग, फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान मेजर जनरल जवाद अहमद के अलावा सरकारी व निजी इदारों के सरबराहान और मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाबा गुंडी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में ये सालाना एक तकरीब इधर होती है जिसमें मकामी लोग शिरकत करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है और आज हम लोगों ने इसको फैसला किया कि गिलगित बल्तिस्तान के कैलेंडर ईयर में इस फेस्टिवल को शामिल किया जाए। हुंजा के अवाम का, बिलखसूस गुजाल और चपुरसन के लोगों का, माओं बहनों का जोश काबिल दीदनी था। I come from Denmark and I traveled to Pakistan for the second time this year. The first time was in April in Ramadan and I fell in love in this country because people were so extremely kind. जिला हुंजा के बालाई गांव चुपुरसन गोजाल में मुनक़िद बाबा गुंदी फेस्टिवल में पोलो, बूझकशी, याक रेस, याक पोलो, रसकशी, सूफी म्यूज़िक का एहतमाम किया गया था। इकराम नजमी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जिला हुंजा।